میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یسوع کے خون سے کرونا پر غلبہ پایا ہے. کرونا ہار گیا ہے اور ہم آج بھی اس کے خون کی وجہ سے زندہ ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہماری حفاظت کرتا رہے گا، چاہے جتنی مرضی ویوز آئیں، جتنی مرضی لہریں آئیں، جتنے مرضی ویریئنٹس آتے رہیں، ہم یسوع کے خون کو اپنے بدنوں پر لگائے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. میں جسٹ ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ذرا تصور کریں اگر کرسمس نہ ہوتا تو شاید ہم نیا سال بھی سیلیبریٹ نہ کرتے. مجھے نہیں لگتا کہ نئے سال کی کوئی اہمیت ہوتی اگر کرسمس نہ ہوتا. یہ ہم کرسچنز نے نئے سال کو ایک نئی جلا دی ہے پاکستان کی حد تک، ورنہ پاکستان میں اس قدر نیا سال سیلیبریٹ نہ ہوتا اگر کرسمس نہ ہوتا. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے لیے. میں پڑھ رہا تھا پچھلے ہفتے میں، کرسمس کے دن، کرسمس کے پیغام میں ایڈ نہ کر سکا، میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی. کسی بندے نے لکھا کہ دنیا کی تاریخ میں بچہ پیدا ہوا یا بچے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہو کر بادشاہ بنے. بچے پیدا ہوئے یا کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ بادشاہ بنا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی بادشاہ بچہ بنا. یعنی کہ کبھی کوئی بادشاہ بچہ نہیں بنا تھا. ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ تھا، لیکن وہ ایک چھوٹا بیبی کرائسٹ، بیبی جیزس بن کر چرنی میں پیدا ہو گیا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ بادشاہ تھا. تو آئے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں، آج کے پیغام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، اس کی ہم 19 آیات پڑھیں گے، لیکن میں وقت کو تھوڑا بچانے کی غرض سے چند آیات پڑھوں گا، بلکہ 5 آیات کی تلاوت کروں گا اور ساتھ ساتھ میں ان آیات کی تلاوت کرتا رہوں گا. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت کے آخر تک ہم خدا کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں گے. خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے: ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کنائے گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. شمعون پطرس نے ان سے کہا: میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے سے کہا: ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. بس یسوع نے ان سے کہا: بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلے سے ہمیں سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے. آمین. آج شام جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک سٹوری ہے ایک ایسے شخص کی جو لوزر ہے، ناکام ہے، ہارا ہوا ہے. وہ زندگی کی دوڑ میں نہ رشتہ نبھا سکا ہے، نہ دوستی نبھا سکا ہے. بے وفا دوست ہے، بے وفا شاگرد ہے، اور وہ ہارنے کے بعد
शर्मिंदा होने के बाद अपनी कॉल को, अपनी विजन को, अपनी रोया को भूल चुका है। लेकिन मेरे अजीजों, आज का पैगाम बिल्कुल कहते हैं कि द हार्ट ऑफ गॉड, जो खुदा का दिल है, खुदा का दिल कैसे काम करता है, कैसे खुदा ऑपरेट करता है, चीजों को चलाता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूजर, हारा हुआ शख्स, नाकाम हो चुका है, क्या उसके लिए कोई उम्मीद बाकी है? आज शाम आप में से कितने हारे हुए हैं 2021 में, या पिछले सालों में आप नाकाम हुए हैं यीशु मसीह की पैरवी करने में, अपने फराइज पूरे करने में? कितने जिंदगी के बदतरीन हालात में से आप गुजर रहे हैं? आप अपने आप को चेक करें। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज आज शाम देना चाहता हूं कि हमारा खुदा गॉड ऑफ फेलियर है, वो नाकाम लोगों का खुदा है। वो जो नाकाम हो चुके हैं, जो हार चुके हैं, उनको भी खड़ा करना चाहता है। और मेरे साथ एक हवाला पढ़े। यशाया ने यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोई की। यशाया 42वें बाब में लिखा कि देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा, और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। एक किताब लिखी गई, द ब्रूज्ड रीड, मसला हुआ सरकंडा। मेरे अजीजों, आप सब और मैं, हम मसले हुए सरकंडे हैं। ऐसे सरकंडा कभी किसी ने देखा जिसे काना पंजाबी में कहते हैं? हम मसले हुए सरकंडे हैं। हम नाकाम हुए हैं हालात की वजह से, या अपने गुनाह की वजह से, या जिंदगी के बड़ी पस्ती में से हम गुजर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज यह है, बाइबल कहती है, यशाया नबी कहता है कि वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। खुशखबरी यह है कि खुदा इन गिरे हुए, हारे हुए लोगों को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उन्हें उठा खड़ा करेगा, उन्हें बचाएगा, उन्हें महफूज करेगा। और पहला आज के नुक्ते का, आज के पैगाम का जो नुक्ता है वो ये है कि जितना बड़ा कोई नाकाम है, उतनी बड़ी उसके लिए मुआफी है। जितना बड़ा कोई फेल हुआ है, जितना बड़ा कोई गिर चुका है हालात के अंदर, उसके लिए उतना बड़ा मुआफी का खुदावंद यीशु मसीह के पास पैगाम है। और ये जो हालात आप देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने पेशेनगोई की। जब पतरस बड़े दावे कर रहा था, कहते कि खुदावंद यीशु मसीह सब तुझे छोड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूं। यीशु ने कहा, पतरस, मुरत बांग नहीं देगा कि तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और बाइबल कहती है कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। और जब यीशु ने पतरस की तरफ देखा, तो पतरस को, अब मूवी में देखते हैं, पतरस को वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कही थी कि तू मेरा इनकार 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम उस मूवी में देखते हैं कि पतरस जार जार रोया। पतरस कहते हैं कि शेम टू डेथ, इतनी शर्मिंदगी जो मौत तक पहुंचा दे। पतरस ने कहा कि आई एम सुपर फेलियर, मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूं,
जिसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। क्या आप ऐसा महसूस आज शाम कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, या मैं दुनिया का सबसे नाकाम शख्स हूं, या मेरे खानदान के अंदर कभी बेहतरी नहीं आएगी? तो मेरे अजीजों, आपका खुदा नाकाम लोगों का खुदा है, और नाकाम लोगों को संभालने की, उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। तो आपने सुना कि जब पहला नुक्ता यह है कि जितना बड़ा कोई नाकाम है उतनी बड़ी उसके लिए मुआफी है। तो हुआ यूं, बाइबल कहती है कि ये ग्रुप जो लोगों का है, खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो गया, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब शागिर्दों पर यीशु मसीह तीसरी बार ये जाहिर हुआ है किसी ना किसी तरह से। तो लिखा है कि जब यीशु मसीह इन बातों के बाद अपने शागिर्दों पर तिबिरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर हुआ, तो ये ग्रुप है लोगों का, शमौन है, तोमा है, नतनेल है, जब्दी के बेटे हैं, सारे इकट्ठे हैं। तो लिखा है कि शागिर्दों में से 2 शख्स जमा थे। तो लिखा है कि उन्होंने, शमौन ने कहा कि चलो मछली के शिकार को चलते हैं। अब ये मछली के शिकार को चल दिए। तो लिखा है कि उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। और जब वो मछली के शिकार को गए, तो बाइबल कहती है एट दैट नाइट दे कॉट नथिंग। उस रात उन्होंने कुछ भी ना पकड़ा, उस रात उन्होंने कुछ भी ना पकड़ा। और लिखा है और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? लिखा है कि उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला, और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। ये सारे लोग जो मछली के शिकार को निकले हैं, ये बड़े माहिर थे, ये जानते थे कि कब, किस वक्त और किस जगह मछली हम पकड़ सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, बाइबल कहती है कि उस रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा है। तो लिखा है कि इसलिए उस शागिर्दों ने जाल डाला है, और इतनी मछलियां कसरत है कि खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है जिंदा होने के बाद। ये जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, ये और कोई नहीं है, यूहन्ना है। लोग उस वक्त अपनी इंजील में या अपनी तहरीर में अपना नाम नहीं लिखते थे। तो यूहन्ना कहते हैं कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, वो यूहन्ना था। तो लिखा है कि उसने कहा, ये तो खुदावंद है। तो लिखा है कि पर शमौन पतरस ने ये सुन करके खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। और लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। और लिखा है कि शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और इसी तरह मछली भी उनको दी। अब लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। जाल डाला, 153 मछलियां पकड़ ली। मैंने कोरिया में एक ये जो बाल पॉइंट होते हैं, इनका ब्रांड देखा, 153, 153। तो किसी ने बताया कि ये वो जो मछलियां पकड़ी थी, उसी नाम से किसी ने ये बाल पॉइंट का ब्रांड निकाला है, और बड़ा पॉपुलर था। बहुत सारे लोग ये बाल पॉइंट जिस पर लिखा 153, 153, ये मैंने बाल पॉइंट्स का ब्रांड देखा कोरिया के अंदर, 153। तो मैंने पूछा कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, तो मुझे बताया गया कि इसकी बैकग्राउंड ये मौजज़ा है। तो बाइबल कहती है, शमौन पतरस और उसके दोस्त जाल डालते हैं और पकड़ते हैं। इतनी मछलियां के कसरत के सबब से जाल खींच ना सके। मेरे अजीजों, यहां पर वो शख्स है
जो सुपर फेलियर है, जो नाकाम शख्स है, जो अपने खुदावंद, अपने उस्ताद का इनकार कर चुका। ही डिनाइड एंड लाइड, उसने झूठ बोला और इनकार भी किया, झूठ भी बोला और इनकार भी किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको उसी जगह पर मिला है। ओ माय गुडनेस, उसी जगह पर यीशु उसको मिला है जैसे यीशु ने उसको पकड़ा था। इसी तिबिरियास की झील पर यीशु ने पतरस को पकड़ा था अपना शागिर्द होने के लिए। यीशु बैठ उसको उसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां से यीशु ने उसको उठाया था। यीशु बताना चाहता है कि आई एम गॉड ऑफ फेलियर, मैं नाकाम लोगों का खुदा, मैं पजल से भरा हुआ खुदा हूं। मेरे अंदर तरस है और मैं गिरे हुए को, मैं गुनहगारों का दोस्त हूं। मैं गिरे हुए को उठाने के लिए आया हूं, मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। और लूका 5वां बाब अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये शागिर्द जो नाकाम हुआ है, बिल्कुल यीशु मसीह उसी बैक उसको उसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां से शमौन पतरस उठाया गया था। यहां पर अगर आप पढ़ें लूका 5वां बाब, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो लिखा कि खुदा का कलाम सुनती और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी। ये सारा लोगों का ग्रुप वही है जो आपको तिबिरियास की झील के किनारे उस दिन नजर आ रहा था जब यीशु मसीह जिंदा होकर उनसे मिला है। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह लूका 5वें बाब में पहले उनको मिला है, जिंदा होने से पहले, और अभी पतरस यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बना है। तो लिखा कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि कश्ती को जरा किनारे से हटा ले चल। तो शमौन जो जिसकी कश्ती थी उसने यीशु की बात मानी। उस रात भी अगर आप पढ़े तो लिखा कि 2 कश्तियां लगी देखी किनारे पर, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल दो रहे थे क्योंकि उन्होंने रात भर कुछ नहीं पकड़ा था। जब यीशु ने पतरस को चुना, उसे कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, उस रात भी पतरस ने कुछ नहीं पकड़ा था। और इस रात, ये 2 वाकयात, उस रात भी कुछ नहीं पकड़ा जब यीशु दोबारा उस पर उसके फेल होने के बाद उसको मिला है। तो लिखा है कि जब यीशु मसीह उसकी कश्ती पर तालीम देने लगा, जब कलाम को कर चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। और ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। और लिखा कि उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा खुदावन मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। लेकिन आज रात दोबारा जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ है, पतरस यीशु मसीह से ये नहीं कहता कि खुदावन मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। पतरस खुदावन यीशु मसीह को वाज़ेह तौर पर जान चुका है और खुदावन यीशु मसीह भी पतरस को वाज़ेह तौर पर जान चुका है। पतरस जानता है कि आई एम फेलियर, मैं नाकाम आदमी हूं, मैं बिल्कुल हारा हुआ हूं, मैंने यीशु मसीह के बात का इनकार किया है। और उस रात पतरस कहते हैं, शुभ पतरस कहते हैं खुदावन मेरे पास से चला जा। लेकिन फर्क देखिए, इस रात इस शुभ जो है पतरस कह रहा है, लिखा कि उसने पानी में छलांग लगाई और कूद पड़ा और वो यीशु मसीह को मिलना चाहता है। उस रात जब वो उस दिन जब यीशु मसीह पहले उसको मिला, वो कहता है मेरे पास से चला जा। लेकिन इस दिन वो कहता है, उसे वो पानी में कूद पड़ता है और यीशु मसीह के पास जाना चाहता है, उसको मिलना चाहता है, क्योंकि पतरस जान चुका है कि हु जीसस इज, कि यीशु मसीह है कौन। उसे पता चल गया है कि ये दुनिया का निजात दहिंदा है, ये दुनिया का बचाने वाला है। तो मेरे अजीजों, जितना बड़ा गुनहगार है, जितना बड़ा कोई नाकाम है, उतनी बड़ी उसके लिए मुआफी है। यीशु मसीह इस गुनहगार को, इस हारे हुए को दोबारा से रेस्टोर करना चाहते हैं, दोबारा से इसको बहाल करना चाहते हैं। वही झील है, वही लोग हैं और वही खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन सूरत हाल मेरे अजीजों बदली हुई है।
इस रात या इस दिन खुदावंद यीशु मसीह पतरस को चुनने के लिए नहीं बल्कि उसको दोबारा से उठाने के लिए आए। अगर आप किसी वजह से जिंदगी में सोच रहे हैं कि खुदा ने मेरे बारे में एंड कर दिया, आपका अब फोन फारग हो गया होगा, तो मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। मैंने सुबह स्टेटस पर लगाया, जब मैं पैगाम तैयार कर रहा था तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा, बस मेरे दिल में आया जब मैं पैगाम तैयार, हैप्पी न्यू ईयर 2022। इफ यू आर अ ग्रेट फेलियर इन 2021, अगर आप 2021 में बड़े नाकाम आदमी हैं, इट्स नॉट एंड, ये अभी खात्मा नहीं है। 2021 में अगर आप नाकाम हो चुके हैं तो ये एंड नहीं है। गुड न्यूज, द ग्रेस ऑफ जीसस हैज रेंडर्ड एवरी डे न्यू ईयर्स डे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल नए साल में हर दिन आपके साथ होगा, हर दिन आपके साथ होगा। नो मैटर व्हाट यू हैव डन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। नो मैटर वेयर यू हैव बीन, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, कहां आप रहे हैं। You can start anew, you can start afresh. Our Savior is always eager and always waiting to start over. नजात दहिंदा आपका इंतजार कर रहा है और वो आपकी जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता है, दोबारा से शुरू करना चाहता है। 2022 स्टार्ट ओवर होगा जब आप फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन। जब आप गलती करते हैं तो वो फॉर्म दोबारा आपको वहां पर ले जाता है जहां से आपने शुरू किया होता है। वो कहता है कि स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरू करें। आपने फिर दरमियान में जाकर फॉर्म फिल करते हुए गलती की ऑनलाइन, वो ऑनलाइन जो सेटअप है, सिस्टम है, वो दोबारा से आपको पहले सवाल पर ले जाएगा। वो कहेगा कि दोबारा से शुरू, स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरू करो। खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों पर दोबारा से काम करना चाहता है। अगर 21 में आप फेल हुए, डोंट वरी, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार फेल हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा और दोबारा आपकी जिंदगी पर काम करना चाहता है। उसका फजल हर रोज नया है। वो मसले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वो मुझे और आपको तोड़ना नहीं चाहता, वो हमारी जिंदगी पर दोबारा से काम करना चाहता है। तो 2021 में नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप फेल हुए, कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए, कितनी बार यीशु मसीह से दूर रहे। 22 अभी बाकी है। 22 में नया फजल, नया रहम, नई ग्रेस खुदावंद आप पर करना चाहता है। अभी एंड नहीं है। गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स, खुदा की देर इनकार नहीं है। देर हुई है, इनकार नहीं हुआ। वो मसले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वो आप पर गिव अप नहीं करेगा। 21 के एंड पे भी आप फैसला करें, खुदावंद अगले साल में हर रोज आपको नई ग्रेस, नया फजल देगा, क्योंकि वो स्टार्ट ओवर करना चाहता है, आपकी जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता है। जितना बड़ा नाकाम है कोई, उतनी बड़ी मुआफी है। दूसरा नुक्ता मेरे पैगाम का आज ये है कि जितना बड़ा कोई नाकाम है उतना बड़ा वो फॉलोअर है। जितना बड़ा कोई फेल हुआ है, जितना कोई फेलियर है, उतना बड़ा वो यीशु मसीह का पैरोकार है। यीशु मसीह अच्छे पैरोकार नहीं हो सकते। अच्छा आदमी बड़ा पैरोकार नहीं हो सकता। जितना इंसान गुनेगा, जो ज्यादा जिसके गुनाह बख्शे गए जाते हैं, वो ज्यादा प्यार करता है। अब 15 आयत से अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि अब यीशु मसीह ने इस गुनेगार को मुआफ किया है, बड़े गुनेगार को, बड़े नाकाम को। तो लिखा कि 15 आयत में जब खाना खा चुके, अब यीशु मसीह ने पतरस को डायरेक्टली डील करना शुरू किया। चूंकि पतरस का मैटर है ज्यादा, मामला से खुदा से फर्दन बात करना चाहता है। वो हर एक से कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर आपको डील नहीं कर रहा, वो आपके हर एक के साथ पर्सनली बात करना चाहता है। अब यीशु मसीह ने खाना खिलाया। खुदावंद ना सिर्फ नाकाम लोगों को मुआफ करता है, वो उनके लिए नाश्ता भी तैयार करता है। उनके लिए नाश्ता, यीशु ने नाश्ता उनको करवाया। यीशु ने कहा कि आओ खा लो कुछ। तो ये यीशु मसीह की मोहब्बत है। तो यीशु मसीह फर्दन एक आप में से हर एक के साथ पर्सनल उसका ताल्लुक है। अब यीशु ने खाना उनको खिलाया, फारग हो गए। यीशु ने कहा पतरस लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ एक वॉक के लिए जाए। अब पतरस और यीशु मसीह वॉक के लिए निकले हैं।
امیجن کریں کتنا اچھا دوست ہے یسوع کا. یسوع نے معاف کیا ہے اس ناکام کو, لوزر کو, کھانا کھلایا ہے. اب یسوع کہتا ہے چلو پترس ایک ومسی واک کے لیے نکلے, اور لکھا کہ جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا, شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے تیسری بار اس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا تو مجھے عزیز رکھتا ہے, اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا, اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے, تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اور یہ کہہ کہ یسوع نے اس سے کہا, تو میری بھیڑیں چرا. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا, اب یسوع مسیح 15ویں آیت سے ایک بڑے فیلئر کو بڑا فالوور بنانا چاہتا ہے. پہلے بڑے ناکام کو بڑی معافی دی, اب بڑے ناکام کو بڑا شاگرد بنانا چاہتا ہے. اب یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ شمعون کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ 3 بار انکار کیا, اب 3 بار یسوع مسیح اقرار کروانا چاہتا ہے اس سے. 3 بار اقرار بھی کیا اس نے. 3 بار یسوع نے ایک ہی سوال کیا. یسوع مسیح نے کہا, کیا تم مجھ سے محبت؟ اس نے کہا, خدا, یاد رکھیے خدا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ خدا آپ کو استعمال کرے, آپ کو بڑا آدمی بنائے, وہ اس سے پہلے آپ کو توڑنا چاہتا ہے. کہتے ہیں بریکنگ بیفور بلیسنگ. برکت سے پہلے خدا ہمیں توڑتا ہے. کسی بھی انسان کو برکت سے پہلے خدا نے توڑا ہے. یعقوب اس رات یبوک کے گھاٹ پر فرشتے سے کشتی لڑتا رہا, وہ پھٹنے کے قریب. خدا ان کے فرشتے نے کہا, مجھے جانے دے. کہتا میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. اس نے کہا, تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا, آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. اس رات لکھا ہے کہ اس کی ران کو اندر کی طرف سے دبایا اور یعقوب لنگڑانے لگا, اور اس رات یعقوب کو برکت ملی. خدا یسوع مسیح شمعون کو ڈیل کرنا چاہتا ہے. یسوع نے 3 بار اس سے, کہتے ہیں کہ یہ سرجن کی طرح, اس سے پہلے کہ یسوع اس کا علاج کرے, یسوع مسیح اس کو ہرٹ کر رہا ہے. یسوع مسیح اس کو مرسیفلی یعنی کہ رحم دلی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی زندگی پر دوبارہ سے کام شروع کر سکے. تو لکھا کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا 3 بار, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس سے آپ محبت, یسوع نے یہ نہیں کہا میرے حکم مان, یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کر وہ کر. یسوع نے کہا, کیا تو مجھ سے, جہاں آپ کا دل ہے, جس سے آپ محبت رکھتے ہیں, اس کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو لکھا کہ یسوع نے کہا, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پھر کہا 3 بار اقرار, انکار, 3 بار اقرار. اب یسوع مسیح نے اس کی زندگی کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ تو میرے لیے, کیونکہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے, اس لیے تم میرے لیے اپنی جان دے دے گا. یسوع نے کہا, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. 25ویں بار یوحنا کی انجیل میں یہ لفظ ویریلی استعمال ہوا ہے. ٹرولی میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. آخری بار یوحنا کی انجیل میں جب کوئی بھی لفظ دہرایا جاتا تھا, اس کا مطلب تھا اس پر زور دینا. یسوع نے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں. یسوع نے کہا, تو میری بھیڑیں چرا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا, اور جب چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا جاتا تھا, مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا, اور جہاں تو چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کیونکہ اس طرح کی موت خداوند کے لیے مرے گا. تو پترس بڑا گنہگار, بڑا ناکام, بڑی معافی. بڑا گنہگار, بڑا پیروکار. بڑا فیلئر یا بڑا ناکام, بڑا پیروکار. خداوند یسوع مسیح نے پترس کو بہت بڑا پیروکار بنا دیا ہے, اور یسوع مسیح کی پیشین گوئی کے مطابق پترس الٹا سلیب پر یسوع مسیح کے لیے لٹک گیا. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں سیدھا مجھے سلیب دیا جائے, چونکہ میرے خداوند کو سیدھی سلیب دی گئی تھی. تو پترس کے
पांव ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ रखकर उसे मसलूब किया गया। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा खुदावंद तू जानता है। पहला पतरस अब पहले जैसा नहीं रहा। बड़ा गुनहगार, बड़ी मुआफी, बड़ा नाकाम, बड़ी मुआफी, बड़ा नाकाम, बड़ा फॉलोअर या बड़ा पैरोकार। तो मेरे अजीजों, अगर आप आज रात फील कर रहे हैं कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप जिंदगी में हार चुके हैं, या आपके पास आप समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई चारा बाकी नहीं है, या मेरे खानदान के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। मरकस की इंजील में मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया ये सुनकर, ये पढ़कर। मरकस 16 बाब की 7वीं 8वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो फरिश्ते ने औरतों को पैगाम दिया। फरिश्ते ने औरतों से कहा जाओ उसके शागिर्दों को और पतरस को बताओ। किसको? पतरस को बताओ कि तुमसे पहले गलील को जाता है। मैं सोच रहा था कि वाई पतरस, क्यों पतरस का नाम है? तो कमेंटेटर्स कहते हैं, जो बाइबल के मुफस्सर हैं, वो कहते हैं शागिर्दों को और पतरस को बताओ कि वो जी उठा है। इसका मतलब यह है कि पतरस को बताओ कि स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, स्टोरी अभी बाकी है। पतरस को बताओ कि तू नाकाम हुआ है, लेकिन खुदा अभी भी तुझ पर काम करना चाहता है। मेरे अजीजों, 2021 के साथ स्टोरी एंड नहीं हुई है। ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 2022 में खुदा आपको पतरस की तरह मुआफ करके खड़ा करना चाहता है। 2022 में खुदा आपको बड़ा पैरोकार, नाकाम से पैरोकार बनाना चाहता है। नाकामी कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कभी बेहतरी नहीं आएगी, मेरे खानदान के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, मेरे बच्चे कभी बेहतर नहीं होंगे, कभी हमारा घर तामीर नहीं होगा, कभी हमारी, लेट्स टॉक इन पाकिस्तानी वोकैबुलरी, मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। पाकिस्तानी वोकैबुलरी में बात करते हैं कि मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। स्टोरी अभी बाकी है। 2022 दस्तक दे चुका है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल हर रोज नए साल 2022 में आपके साथ होगा। वो हर रोज आप पर नया रहम करेगा। जब आप सुबह सवेरे उठेंगे, उसका नया रहम, नया फजल, नई बरकतें, नया उसका प्लान आपकी जिंदगी में होगा। डोंट गिव अप, परेशान ना हो। खुदावंद, हमारा खुदा नाकाम लोगों को बचाता है, वो नाकाम लोगों का खुदा है। अगर आप हार चुके हैं तो मैं आपको इनकरेज करता हूं, जस्ट वेट फॉर वन मोर ईयर, एक और साल इंतजार करें। जाओ शागिर्दों को और पतरस को बताओ कि वो जी उठा है। पतरस, मेरे प्रॉमिसेस खत्म नहीं हुए, मेरे वादे खत्म नहीं हुए। तूने इनकार किया है, लेकिन मैं तुझसे आज भी मोहब्बत करता हूं। आप नाकाम हुए हैं, खुदा आज भी आपसे मोहब्बत करता है। आखिरी अल्फाज कहते हैं, देयर इज मोर मर्सी इन क्राइस्ट देन योर सिंस। यीशु मसीह के अंदर आपके गुनाहों से ज्यादा रहम मौजूद है। आपके उतने गुनाह नहीं है जितना उसका रहम, जितना उसके अंदर रहम है। मैंने एक बार कहा कि खुदा के पास आपको देने के लिए फजल के अलावा कुछ नहीं है। वो आप पर सिर्फ फजल करना चाहता है। खुदा के पास आपको देने के लिए फजल के अलावा कुछ नहीं है। वो नए साल में नया रहम, नया फजल आप पर करेगा। डोंट गिव अप, परेशान ना हो। पतरस, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, अभी जिंदगी बाकी है, फजल बाकी है। जब यीशु मसीह आप पर फजल नहीं करना चाहेगा, वो आपको और मुझे उठा लेगा। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, हर रोज उसका फजल आपके साथ होगा, सुबह सवेरे उठते ही। गॉड ब्लेस यू।